السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں طلال عربی۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ باغوں کے شہر لاہور میں بسنت فیسٹیول کا اختتام ہو گیا۔ لاہوریوں نے دوسرے شہروں سے آئے مہمانوں کے ساتھ مل کر بسنت فیسٹیول خوب انجوائے کیا۔ دوران فیسٹیول چھتوں پر لائٹننگ، مزیدار کھانوں کے ساتھ بو کاٹا کے نعرے فضا میں بلند ہوتے رہے۔ لاہوریوں نے 2 دہائیوں بعد شروع ہونے والی بسنت سے خوب لطف اٹھایا۔ لاہوریوں نے SOPs پر عمل کر کے تہوار کا خود تحفظ کیا۔ باہوں کے شہر لاہور میں بسنت فیسٹیول خوبصورت جادے لیے اختتام پذیر ہو گیا۔ لاہوریوں نے مہمانوں کے ساتھ مل کر بسنت فیسٹیول خوب انجوائے کیا۔ فیسٹیول چھتوں پر کھانوں کے ساتھ بو کاٹا کے نعروں فضا میں بلند ہوتے رہے۔ لاہوریوں نے 2 دہائیوں بعد شروع ہونے والے بسنت سے خوب لطف اٹھایا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس خبر کے حوالے سے۔ لاہور میں بسنت کا فیسٹیول، باہوں کے شہر لاہور میں بسنت فیسٹیول کا اختتام ہو گیا ہے۔ لاہوریوں نے دوسرے شہروں سے آئے مہمانوں کے ساتھ مل کر بسنت فیسٹیول خوب انجوائے کیا۔ دوران فیسٹیول چھتوں پر لائٹننگ، مزیدار کھانوں کے ساتھ بو کاٹا کے نعرے فضا میں بلند ہوتے رہے۔ لاہوریوں نے 2 دہائیوں بعد شروع ہونے والی بسنت سے خوب لطف اٹھایا۔ لاہوریوں نے SOPs پر عمل کر کے تہوار کا خود تحفظ کیا۔ باہوں کے شہر لاہور میں بسنت فیسٹیول خوبصورت جادے لیے اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ لاہوریوں نے مہمانوں کے ساتھ مل کر بسنت فیسٹیول خوب انجوائے کیا اور فیسٹیول چھتوں پر کھانوں کے ساتھ بو کاٹا کے نعرے فضا میں بلند ہوتے رہے ہیں۔ آگے بڑھیں آپ بات کریں رمضان المبارک سے قبل ہی مہنگائی کی لہر۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 8 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پھل بھی مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ برائلر گوشت سستا ہونے کے باوجود مہنگا بیچا جا رہا ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت نیچے آنے لگی۔ عبدالقادر ماہ سیام سے قبل ہی اشیاء ضروریہ کے دام بے لگام۔ خود ساختہ مہنگائی عوام کے لیے اذیت بن گئی۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 8 سبزیوں کے نرخوں میں اضافہ۔ پرچون میں ٹماٹر 130، لہسن 680، لیمو چائنا 120 روپے فی کلو ہیں۔ سبز مرچ 220، بھنڈی 380، شملہ مرچ 200 روپے فی کلو مل رہی ہیں۔ مونگرے 200، گاجر دیسی 50 روپے فی کلو تک دستیاب ہے۔ سیب درجہ اول 550، امرود اور بیر 180 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں۔ پپیتا 550، انار کندھاری 800 اور کھجور ایرانی 660 روپے فی کلو ہیں۔ کیلے درجہ اول 260، کینو 400 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برائلر گوشت 22 روپے سستا فی کلو، سرکاری دام 526 روپے مقرر۔ صافی برائلر گوشت 600 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ فارمی انڈے 48 روپے کمی سے 250 روپے فی درجن پر آ گئے۔ مارکیٹ میں سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ دکاندار اشیاء ضروریہ کے من مانے دام وصول کر رہے ہیں۔ آسما جہانگیر کانفرنس کا آخری روز۔ کانفرنس میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں 700-800 لوگ بینک لوٹیں، سرکاری افسران کو مارے تو سیکیورٹی فورسز حرکت میں آئیں گی، جبکہ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا تھا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ مقامی ہوٹل میں آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بلوچستان کے 2 مسائل ہیں، ایک مسئلے کی نمائندگی بشیر زیب اور دوسرے کی اختر مینگل کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں وسائل کی تقسیم میں ناانصافی پر بات ہو سکتی ہے۔ اس وقت بلوچستان کے 2 کرائسس ہیں۔ میری رائے میں یہ دونوں کرائسس جو بشیر زیب جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور جس کو میرے انتہائی محترم دونوں بھائی جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ان دونوں کو حل کرنے کے طریقہ کار بھی علیحدہ ہے، ان کے مضمرات و مطالبات بھی علیحدہ ہیں۔ ہم یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو مکس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی جیسے یہ ہے اس کی وجہ سے یہ ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ پاکستان کا موقف شروع دن سے یہی رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ We have seen after all of these efforts where Pakistan has made real efforts to try and get the Taliban regime to sit down and really agree to a credible and verifiable mechanism to stop the cross-border terrorism. We've seen them fail because it always starts with a discussion or an agreement, broadly speaking, but when it comes down to thrashing out a credible and verifiable mechanism based on information, specific information that Pakistan has provided,
we feel that, and this has been now a tried and tested experience, that the Taliban regime then backtracks and is not willing to. वफाकी वजीर क्लाइमेट चेंज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौसमियाती दहशत गर्दी किसी भी दूसरी दहशत गर्दी से ज्यादा खतरनाक है। 4 सैलाबों में 19,000 लोग जख्मी हो चुके, 2 करोड़ बच्चे सैलाबों की वजह से स्कूल नहीं जा सके। वही 10 मुल्क जो 70 से 75% कार्बन एमिट कर रहे हैं, वही 10 मुल्क 85% दुनिया की ग्रीन फाइनेंसिंग ले रहे हैं। 85%, यानी दुनिया के 180-85 मुमालिक एक तरफ, और वो 10 मुल्क जो पैकमैन की तरह क्लाइमेट को खा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सैलाब आ रहे हैं और हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, वही मुल्क 85% दुनिया की ग्रीन फाइनेंसिंग खा रहे हैं। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि मैंने पंजाब का मुकदमा लड़ना है। जब पंजाबी का शनाख्ती कार्ड देखकर उसे गोली मारी गई, मैं उसकी मजम्मत तो सुनना चाहता हूँ। अब मुझे पंजाब का मुकदमा लड़ना है, मुझे सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं पंजाब से हूँ, इसलिए कि मेरे पे जो इल्जाम लगते हैं, जो तीर मेरे पे बरसाए जाते हैं, उनको सुनते सुनते भी 50, 60, 70 साल गुजर गए। वो मेरा भाई या मेरा बुजुर्ग या मेरा बच्चा जिसके सिर्फ शनाख्ती कार्ड को देखा गया और उस शनाख्ती कार्ड पर अगर ये लिखा हुआ पाया गया कि इसका तल्लुक पंजाब से है, उसको गोली मार दी गई, तो गोली मारने वालों की मजम्मत भी तो पंजाब सुनना चाहता है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मेंगल, नफीसा शाह, सेनेटर फरहतुल्ला बाबर, अफरा सियाब खटक, अब्दुल मालिक, हिना जलानी और आबिद साकी ने भी खिताब किया। कैमरामैन फखर अब्बास और साथी रिपोर्टर जाहिद आबिद के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर अदबी मेला इल्मी और अदबी रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मेले के 14वें एडिशन में बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की अदबी शख्सियात की शिरकत। 3 रोज़ा मेले के मुख्तलिफ सेशंस में अदब, समाज और सकाफत पर खुलकर गुफ्तगू। लाहौर अदबी मेले का 14वां एडिशन तमाम तर इल्मी और अदबी रनाइयों के साथ खत्म हो गया। 3 रोज़ा मेले के दौरान अदब, सकाफत और मुकालमे का भरपूर रंग देखने में आया। इवेंट के ऑर्गेनाइजर रजी अहमद ने बताया कि मेले के दौरान 15 ममालिक के दानिश्वरों, सिफारतकारों और अदबी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि मजमूई तौर पर 7,000 से जायद अफराद इस अदबी फेस्टिवल का हिस्सा बने। बहुत अच्छा यहाँ पे बंदोबस्त था और अलहमरा की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से पूरा ताउन था, तो मुझे खुशी हुई कि बहुत बेहतरीन ये 14वीं एडिशन गई है और कोई 15 ममालिक से लोगों ने शिरकत की। कोई कम से कम 5-6-7 हज़ार बंदा आज मौजूद था बसंत के बावजूद, तो मुझे इस बात की खुशी है। बांग्लादेश से आए दानिश्वर सैफुल इस्लाम ने कहा कि ऐसे अदबी फोरम्स खित्ते में मुस्बत मकालमे को फरोग देते हैं। खेलों को सियासत से अलग रखा जाना चाहिए। It's a fundamental event that is happening, and it should be supported wholeheartedly by both the public and the private sponsorship. Not only that, it's not simply that, but by the quality of material that comes across. So the material that is discussed over here must be relevant, must be challenging, even controversial if necessary, but it must make people sit up and think, because we are all victims of comfort. You know, we become complacent, we read the newspapers and that is it. Festivals like this make us aware that there is a world out there of ideas and possibilities, and this is the key role that this festival plays. मेले में नौजवानों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मारूफ दानिश्वर सलीमा हाशमी का कहना था कि लाहौर अदबी मेला नौजवान नस्ल को अदब और सकाफत से जोड़ने का मौसर जरिया है। इस साल भी लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसमें हर किस्म के लोग, हर किस्म की किताब, हर किस्म का बहस मुबासा हुआ, जिससे हम लोग तो महसूस हुए, लेकिन खुशी इस बात की है कि नौजवान लोग यहाँ पे चौक दर चौक आए। इल्म और अदब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात का कहना है कि लाहौर अदबी मेला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में इल्मी और फिक्री राब्तों को मजबूत कर रहा है। लाहौर में जदाद पोलियो कैचअप मरहले में दाखिल हो गई है। कैचअप के दौरान पोलियो वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। 5 रोज़ के दौरान लाहौर में 15,27,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम कैचअप के मरहले में दाखिल हो गई है। कैचअप के दौरान पोलियो वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। कैचअप के दौरान 2 दिन मखसूस किए गए हैं। मुहिम के दौरान पंजाब भर में 1,73,00,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 5 रोज के दौरान 15,27,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। मुहिम के दौरान मोबाइल आबादियों के 5 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। 35 अजला में पोलियो मुहिम का इख्तिताम हो चुका है। रावलपिंडी में 7,28,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। मुल्तान में 7,71,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। पुलिस की जानिब से पोलियो वर्कर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई। वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों की शिकायत 1166 पर दर्ज की जा सकती है। अहम गुजरगाहों पर पोलियो टीमें तैनात की गई हैं। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के सरबराह का कहना है कि वालिदैन बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो वर्कर्स के साथ खुश असलूबी से पेश आएं। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अपने किसान को मिडल मैन या मार्केट के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगी। पंजाब में आलू के रिकॉर्ड पैदावार को कोरियों के भाव नहीं बिकने दिया जाएगा। आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। आलू की बम्पर क्रॉप वज़ीर आला पंजाब की ज़राई इस्लाहात रंग ले आई। पंजाब आलमी मंडी में आलू बरामद करने वाला सूबा बनने के करीब। गुज़श्ता साल के मुकाबले में आलू की पैदावार में 25% इजाफा। पंजाब में आलू की 12 मिलियन मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आलू की बरामद के लिए वज़ीर आज़म से इजाज़त तलब कर ली। पाकिस्तान में मौजूद काज़िस्तान के आला सतह वफ़द और पंजाब हुकूमत के दरमियान आलू की बरामद के लिए अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि आलू की एक्सपोर्ट के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। काज़िस्तान पहला कदम जल्द मज़ीद बैनुल अक़वामी ज़राई मंडियों तक रसाई हासिल करेंगे। पंजाब में आलू की रिकॉर्ड पैदावार को कोड़ियों के भाव नहीं बिकने दिया जाएगा। अपने किसान को मिडल मैन या मार्केट के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। आलू की बम्पर क्रॉप किसान के लिए परेशानी नहीं बल्कि खुशहाली का पैगाम लाएगी। आलू के निर्ख में इस्तेहकाम और काश्तकारों को मुनासिब मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाने के लिए नई एक्सपोर्ट मार्केट तक रसाई के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि इस्लामाबाद सानहे पर पूरा मुल्क सोग में है। दहशतगर्द की पहचान हो गई है। हैंडलर्स के करीब पहुंच गए। 48 घंटों में हक़ायक़ कौम के सामने लाएंगे। मुल्क में जो दहशतगर्दी वापस आई है उसकी ज़िम्मेदार PTI है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जामिया मिनहाजुल हुसैन जौहर टाउन आमद, अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर और दीगर उलमा से मुलाकात। अता तारड़ की इस्लामाबाद वाक़े पर शदीद मसम्मत, मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का इंतज़ार। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों और हैंडलर्स का सुराग लगाया जा चुका। बहुत जल्द अवाम के सामने तमाम हक़ाइक़ रखे जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। ये यकीन दिलाता हूँ कि बहुत हद तक जो है वो निर्गा उनके इर्द गिर्द तंग कर लिया गया है और इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सुराग बहुत हद तक लगा लिया गया है, सहूलतकारों का भी, हैंडलर का भी, और वो तफसीलात को पब्लिक को बताया जाएगा, आपको उनसे आगाह किया जाएगा बहुत जल्द। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि दहशतगर्दों की हार्ड टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत खत्म हो चुकी, इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट की जानिब जाते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। हमने दहशतगर्दी को खत्म किया। अब जो दहशतगर्दी आई है उसके पीछे PTI है। दहशतगर्दों की अब सकत खत्म हो गई है हार्ड टारगेट के पीछे जाने की, तो इसलिए ये मज़ाफ़ात में जाके जो दूर दराज इलाके होते हैं वहाँ पे जाके इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। इस मौका पर जामिया मिनहाजुल हुसैन के इलामा मोहम्मद हुसैन अकबर का कहना था कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी एक शहर का नहीं पूरे पाकिस्तान का सानेहा है। हम दुश्मन का हर तरह से मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेस्को में नेट मीटरिंग की बिलिंग पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आ गई। वजारत तवानाई की हिदायत पर नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए बिजली के एक्सपोर्ट रेट में 66 पैसे कमी। फी यूनिट एक्सपोर्ट रेट 25 रुपये 98 पैसे से कम होकर 25 रुपये 32 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। लेस्को के नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए बिजली के एक्सपोर्ट रेट में 66 पैसे कमी। लेस्को के IT डायरेक्टोरेट ने रेट में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फी यूनिट एक्सपोर्ट रेट 25 रुपये 98 पैसे से कम करके 25 रुपये 32 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। नई बिलिंग पॉलिसी जनवरी के बिलिंग साइकिल से नाफिजुल अमल कर दी गई। पॉलिसी के तहत मंजूर शुदा DG कैपेसिटी से जायद एक्सपोर्ट यूनिट पर पाबंदी आयद। इजाफी एक्सपोर्ट यूनिट को DG कैपेसिटी के तनासुब से महदूद किया जाएगा। एक्सपोर्ट MDI ज्यादा होने पर यूनिट्स एडजस्टमेंट करने का नया फार्मूला मुतारिफ करवाया गया। CP22 के तहत एक्सपोर्ट यूनिट की एडजस्टमेंट जारी रहेगी। पॉलिसी से नेट मीटरिंग सार्फिन के माली फवाइद मजीद महदूद होने का इम्कान है। लेस्को IT डायरेक्टोरेट ने तमाम अफसरान को पॉलिसी पर फौरी अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़।
पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम की नाकामी का बड़ा इंकशाफ। सूबे भर में 2 लाख से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ मंजर-ए-आम पर आ गई, मगर हैरानकुन तौर पर किसी ज़िम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। सिर्फ लाहौर में 80,000 से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ सामने आना महकमा एक्साइज की कारकर्दगी पर संगीन सवाल खड़े कर रहा है। पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम में संगीन खामियों का इंकशाफ। 2 लाख से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी सामने आने के बावजूद महकमा एक्साइज खामोश दिखाई देता है। कई बरसों से बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज को टैक्स नेट में शामिल ही नहीं किया गया, जिसके बायस महकमा एक्साइज को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान होता रहा। एदादो शुमार बताते हैं कि सिर्फ लाहौर में 80,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज गैर रजिस्टर्ड पाई गई, जबकि लाहौर के एक ही सर्कल से 13,000 गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की निशानदही की गई। हैरानकुन तौर पर ये तमाम अनअसेस्ड प्रॉपर्टीज 6 माह के अंदर अंदर सामने आई। इसके बावजूद किसी ऑफिसर या मुलाजिम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जराये का कहना है कि अरबों रुपए का मुमकिन रेवेन्यू जाया होने के बावजूद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न होना सवालिया निशान बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक इतनी बड़ी तादाद में अनअसेस्ड प्रॉपर्टीज का बरसों तक सिस्टम से बाहर रहना बगैर किसी सरपरस्ती के मुमकिन नहीं। फिल वक्त इतना ही।